عمران کا خیال 100% درست نکلا۔ سر سلطان کے بنگلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا جو اس طرح کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ لباس سے خوشحال معلوم ہوتا تھا۔ عمران کی کار اس کے قریب سے گزر گئی۔ عمران سوچ رہا تھا ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو، کیونکہ ایسے حالات میں جب کہ پولیس وہاں سے ایک لاش لے گئی تھی اس کا وہاں ٹھہرنا مشکل ہی ہوتا، لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح رائے نہیں قائم کی جا سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی کارروائی ختم ہو جانے کے بعد وہاں پہنچا ہو، اسے اس کا علم ہی نہ ہو سکا ہو کہ تھوڑی دیر قبل وہاں کیا ہو چکا ہے۔ یہ غریب آدمیوں کی بستی تو تھی نہیں کہ لوگ گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر اس واقعے کے متعلق چماگویاں کرتے۔ یہاں اس طبقے کی آبادی نہیں تھی جس کے افراد کسی آوارہ کتے کی اچانک موت پر بھی افسوس کرنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے پولیس تھوڑی دیر قبل ایک آدمی کی لاش لے گئی تھی، لیکن اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ بس تھوڑی دیر کے لیے مکانوں کی کھڑکیاں کھلی تھیں، کچھ لوگ سڑک پر نکل آئے تھے اور پھر کچھ بھی نہیں، گویا پرندوں کے جھنڈ پر کسی شکاری نے گولی چلائی۔ ایک گرا، دوسرے اڑ گئے۔ اس کے بعد نیچے وہی زمین اور اوپر وہی بے قرار نیلا آسمان، اور دونوں کے درمیان وہی ازلی سناٹا۔ عمران کی کار اس آدمی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی، رفتار پہلے ہی سے کم تھی۔ عمران ایک دوراہے پر اس سے روک کر دو بنگلوں کے درمیانی جگہ میں اس طرح بیک کرنے لگا جیسے غلط راستے پر نکل آنے کے بعد واپس ہونا چاہتا ہو، مگر اس کی کار دوبارہ سڑک پر نہیں آئی۔ عمران اسے روک کر نیچے اتر آیا۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اب بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا اور نہ اب اس کے انداز میں پہلے کسی بے فکری تھی۔ وہ ایک دوسرے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان کے قریب ہی ایک شاندار کار کھڑی تھی۔ عمران نے انہیں کار میں بیٹھتے دیکھا اور کار مخالف سمت میں مڑ گئی۔ عمران بڑی تیزی سے اپنی کار کی طرف جھپٹا۔ اس نے انجن بند نہیں کیا تھا، مگر اس سے یہ غلطی بے خیالی میں سرزد ہوئی تھی۔ دیدہ دانستہ ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی کار دوسری کار کے تعاقب میں روانہ ہو گئی، لیکن اس اسٹیج پر اسے یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے۔ کسی بھی معاملے کی سراغ رسانی کی ابتدا ایسے ہی غیر یقینی حالات سے ہوتی ہے۔ محض شبے کی بنا پر غلط راستے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ ہی سراغ رساں کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی وہ حقیقتاً غلط راستہ نہیں ہوتا۔ اور پھر عمران تو اس کا قائل تھا کہ جیسے کوئی مغنی ستار پر الٹے سیدھے ہاتھ چلاتے چلاتے کوئی دھن نکال لیتا ہے، اسی طرح ایک سراغ رساں کی بے مقصد باغ دوڑ بھی آخرکار اسے منزل تک پہنچا ہی دیتی ہے۔ وہ اگلی کار کا تعاقب کرتا رہا۔ اب وہ شہر کے سب سے زیادہ بارونق حصے میں تھا۔ کار فگارو کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ یہ یہاں کے بہت بڑے ہوٹلوں میں سے تھا، اور اب عمران نے دوسرے آدمی کو قریب سے دیکھا۔ یہ فگارو کے مینیجر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران کی کار بھی کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہی پیچھے ہوٹل میں داخل ہوا۔ عمران سمجھا کہ شاید مینیجر اپنے کمرے میں ہی جائے گا، لیکن وہ اور اس کا ساتھی ڈائننگ ہال ہی میں ایک خالی میز کے گرد بیٹھ گئے۔ دو کرسیاں خالی تھیں۔ عمران تیر کی طرح ان کی طرف گیا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں نے اس کی اس حرکت کو حیرت اور غصے کی نظر سے دیکھا۔ جواب میں عمران بھی حیرت سے منہ کھولے انہیں باری باری سے گھور رہا تھا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتے، عمران بڑی سنجیدگی سے بولا، اور پھر جب آپ نے ٹیلی فون ڈائریکٹری کی ورگردانی کی تو اس سے وہ نمبر مل گیا، لیکن وہ نمبر ہوم سیکرٹری سر سلطان کا تھا۔ کیوں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ مینیجر کا ساتھی منہ کھول کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا تھا۔ عمران نے یہ تبدیلی اچھی طرح محسوس کی، لیکن مینیجر نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ اور درویش کی صدا کیا ہے؟ عمران نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مینیجر غرایا، اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہونے والی باتیں ہو کر رہتی ہیں۔ مثلاً اس پینسل پر دانتوں کے نشانات موجود ہیں جسے دانتوں میں دبا کر آپ کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ مقتول مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جکڑا ہوا تھا، اور وہ سر سلطان کے پڑوس کے ایک خالی بنگلے میں تھا۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ تار سر سلطان کے وائر پول سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا۔ آہا، آپ نہیں سمجھے؟ پھر سے سمجھیے، بلکہ یوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مینیجر نے بات کاٹ دی، لیکن اب اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹھ چکی تھی۔ کیسی لاش؟ مینیجر کے ساتھی نے تھوک نکل کر پوچھا۔ اچھی لاش،
यानी मेरा मतलब यह है कि वो खराब नहीं हुई थी। इमरान ने जवाब दिया। आप हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैनेजर ने संभाला लिया। अजनबियों से बेतकल्लुफ होने की कोशिश करना बदतमीजी है। सिर्फ इसी सूरत में जनाब, इमरान दीदे नचाकर बोला, जब वो अजनबी औरतें हों। आप बराह करम यहाँ से उठ जाइए, वरना। मैनेजर इसे घूरने लगा। अच्छा अब सुनिए, इमरान ने संजीदगी से कहना शुरू किया। शायद आपको इल्म नहीं कि बड़े अफीसरों और वज़रा के टेलीफोन आम टेलीफोनों से मुख्तलिफ होते हैं। यानी एक्सचेंज में इनके मीटर से एक छोटा सा टेली प्रिंटर भी अटैच होता है। यानी इधर आपने इनके नंबर डायल किए, उधर वहां आपके नंबर खटाखट छप गए। इसी तरह दोनों तरफ के नंबर छप जाते हैं। अब आप गालिबन समझ गए होंगे कि मैं सीधा यहाँ कैसे पहुंच गया। इमरान ने ये गप कुछ इस अंदाज में हाँकी कि अचानक मैनेजर के चेहरे पर जर्दी फैल गई। इसके साथी की हालत तो इससे भी ज्यादा अबतर थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इसके फेफड़ों में मजीद सांसों के लिए जगह ना रह गई हो। आप कौन हैं? मैनेजर ने खौफजदा आवाज में पूछा। क्या अब भी ये बताने की जरूरत बाकी रहती है कि मैं कौन हूँ? पुलिस? 100% जनाब, इमरान सर हिलाकर बोला। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सोच समझ कर कहेंगे। मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, मैनेजर आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। क्या हम कहीं तन्हाई में नहीं चल सकते? इमरान ने कहा। आप भी मुअज़्ज़िज़ आदमी हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बात आम आदमियों में फैले। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैनेजर जल्दी से बोला। मेरे ऑफिस में चलिए। वो तीनों वहां से उठकर मैनेजर के ऑफिस में आए। इमरान ने खुद ही गुफ्तगू छेड़ दी। इसके बोलने का इंतजार नहीं किया। उसे दूसरे बंगले में हलाक करके लाश सर सुल्तान के कंपाउंड में डाल दी गई थी। आपको फोन करने के लिए सर सुल्तान के नंबर इस्तेमाल किए गए। मैं तो आपको ये भी बता सकता हूँ कि मकतूल ने फोन पर आपसे क्या कहा था। मैनेजर कुछ नहीं बोला। इमरान इसके चेहरे पर नजर जमाए हुए था। फिर इसी ने कुछ देर बाद पूछा, मकतूल कौन था? फिगारो का एक हिस्सादार, मिस्टर करार, मैनेजर ने मुर्दा सी आवाज में जवाब दिया। करार और हिस्सादार का काफिया मुझे पसंद आया। बहरहाल, मगर जनाब, वो चक्कर क्या था? मैं किसी चक्कर से वाकिफ नहीं, मैनेजर ने कहा। ना ये जानता हूँ कि वो वहां पहुंचे किस तरह। बिलाशुबा आप ये नहीं जानते कि मकतूल वहां कैसे पहुंचा था, लेकिन चक्कर से तो आप वाकिफ हैं। इस सिलसिले में आप झूठ बोलकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि मैं इस गुफ्तगू के एक एक लफ्ज से वाकिफ हूँ जो आप दोनों के दरमियान फोन पर हुई थी। मैनेजर फिर खामोश हो गया। बता देने में आपका फायदा है, इमरान ने कहा। दूसरी सूरत में आप अपनी खतरनाक पोजीशन से तो वाकिफ ही हैं, क्योंकि मामला होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी का है। मैनेजर सर झुकाए गहरी गहरी सांसें लेता रहा। हाँ, जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त कम है, वरना आपको इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि लाश सर सुल्तान के कंपाउंड में क्यों डाली गई थी, और शायद आपके फरिश्ते भी इसका जवाब ना दे सकें। वैसे आप ये तो जानते होंगे कि किसी बात को गलवाने के सिलसिले में पुलिस वाले जहन्नम के फरिश्तों से कम नहीं होते। गूंगे, बहरे और अंधे, सिर्फ इनके हाथ मशीनों की तरह चलते रहते हैं। वो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना देख सकते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप मेरे बयान पर यकीन ही कर लें? इसका फैसला मैं खुद करूंगा, इमरान ने नरम लहजे में कहा। आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपकी जुबान से कुछ न कुछ सुनना जरूरी समझता हूँ। मैनेजर थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर इसने कहा, करार साहब एक आदमी के चक्कर में थे। इनका ख्याल था कि अगर इन्होंने इस आदमी पर काबू पा लिया तो मालामाल हो जाएंगे। वो आदमी कौन है, ये इन्होंने नहीं बताया था। अलबत्ता मैं ये जानता हूँ कि करार साहब की जिंदगी का पेशतर हिस्सा जनूबी अफ्रीका में गुजरा था, और वो आदमी वहीं से ताल्लुक रखता था। क्या वो आजकल यही है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, करार साहब ने तो यही बताया था। कहाँ है, कौन है? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, लेकिन इतना जानता हूँ कि इसका कयाम सेठ दाऊद के मेहमान खाने में है। शायद आपको इल्म हो कि सेठ दाऊद की तिजारत अफ्रीका में भी है, और यहाँ अक्सर इनके पास अफ्रीकी ताजर आते रहते हैं। इसके लिए इन्होंने खास तौर पर एक मेहमान खाना बना रखा है। इमरान सर हिलाकर रह गया। वो कुछ सोच रहा था। फिर इसने कुछ देर बाद पूछा, करार ने आपको इसका नाम या हुलिया तो यकीनन बताया होगा? जी नहीं, ना मैंने पूछा और ना इन्होंने बताया। वैसे मैं इन्हें बहुत करीब से जानता था। वो कीमिया गैरी के खप में मुब्तला थे, और मुझे इस मौजू से जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि ये चीज बिल्कुल मनशियात की तरह आदमी के वजूद से चिमट जाती है। करार साहब वैसे भी काफी दौलतमंद थे, लेकिन सोना बनाने का खप्त इन पर बुरी तरह सवार था। 24 घंटे वही चक्कर। अच्छा,
मुझे करार साहब का पता नोट करवा दीजिए। इमरान ने जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा। 13 मार्स्टन रोड। वो वहां तनहा रहते थे। इनके रिश्तेदार? मुझे तो इनके किसी भी रिश्तेदार का इल्म नहीं। इन्होंने कभी किसी का तस्करा ही नहीं किया। आपकी तारीफ, इमरान ने मैनेजर के साथी की तरफ देखकर कहा। मेरे असिस्टेंट मिस्टर तनवीर। अच्छा, सिर्फ एक सवाल और। इमरान नोटबुक बंद करके जेब में रखता हुआ बोला। क्या करार साहब ने आपसे कहा था कि इस शख्स पर काबू पाने के लिए इसे आपकी मदद की भी जरूरत पेश आ सकती है? जी हाँ, इन्होंने कहा था। इनका ख्याल था कि वो बहुत खतरनाक और इंतहाई चालाक आदमी है और एक बड़ा मुजरिम भी। लिहाजा मैं इनकी मदद करने पर तैयार था, क्योंकि मुझे मुजरिमों से जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं होती। खूब, इमरान मुस्कुराया। आपको तो पुलिस ऑफिसर होना चाहिए था। अच्छा जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं फिर आपको तकलीफ दूं। मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूं, मैनेजर ने बड़े खलूस से कहा। थोड़ी ही देर बाद इमरान की कार मार्स्टन रोड के 13वें बंगले के कंपाउंड में दाखिल हुई। बंगला शानदार था और पाए बाग की हालत से करार की खुश मजाकी जाहिर हो रही थी। इमरान की कार पोर्टेको में जैसे ही रुकी, एक कवि हैकल आदमी दाहिने बाजू के कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। इस पर नजर पड़ते ही इमरान ने एक तवील सांस ली। इमरान इससे अच्छी तरह वाकिफ था। ये पिंटू था, एक पेशावर मुक्काबाज जिसका शुमार शहर के बदमाशों में होता था। वो भी इमरान से ना सिर्फ वाकिफ था बल्कि एहसानमंद भी था। एक बार इमरान ने इसे एक मशहूर कमारबाज ग्रोह के पंजे से रिहाई दिलाई थी, वरना वो एक बड़ी रकम के साथ अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठता। इमरान को कार से उतरते देखकर वो इसकी तरफ लपका। अरे आप हैं? इसने बुखलाई हुए लहजे में कहा। यानी आप इधर कैसे भूल पड़े? पिंटू, मैं एक जरूरत से आया हूँ। इमरान इसके साथ बरामदे में दाखिल होता हुआ बोला। मेरे लायक कोई खिदमत इमरान बाबू? मैं सारी जिंदगी आपका एहसान याद रखूंगा और साथ ही साथ ये भी कहता रहूंगा कि आप अपनी सलाहियतें बेकार जाया कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो देते तो दुनिया के अच्छे मुक्काबाजों में आपका शुमार हो सकता था। मुझे आपके वो मुक्के कभी नहीं भूलेंगे जो आपने रक्सटन के ग्रोह पर बरसाए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीन बड़ी अच्छी बजा सकता हूँ, इमरान ने संजीदगी से कहा, लेकिन फिलहाल इस तस्करे को रहने दो। मरने से कबल मैं एक बार इस मसले पर जरूर गौर करूंगा कि मुझ में किस किस्म की सलाहियतें ज्यादा हैं। आप जो कुछ भी फरमाइए, मैं हर काम के लिए हाजिर हूँ। तुम करार के मुलाजिम हो? जी हाँ, मैं इन्हें मुक्केबाजी सिखाता हूँ। आप तशरीफ रखिए, आपके लिए काफी बनवाऊं या कोल्ड ड्रिंक? इमरान एक आराम कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। क्या करार साहब पिछली रात मगर ठहरो, क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यही मुकीम हो? जी हाँ, करार साहब मुझ पर बहुत मेहरबान हैं। इन्होंने मुझे एक कमरा दे रखा है और मेरे आराम का ख्याल रखते हैं। पिछली रात वो बंगले ही में थे? इमरान ने पूछा। क्यों, क्या बात है? मेरी बात का जवाब दो पिंटू। जी हाँ, मगर नहीं, वो सिर्फ 9:30 बजे रात तक यहाँ थे। इसके बाद से शायद अब तक वापस नहीं आए। ये कोई ऐसी तशवीशनाक बात भी नहीं। क्यों? इमरान ने सवाल किया। जी हाँ, वो अक्सर 3-3 दिन तक यहाँ नहीं आते। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या इन्हें कोई हादसा पेश आ गया है? पिंटू, तुम फिलहाल सिर्फ मेरे सवालात के जवाब दो। इसके बाद जो कुछ भी पूछोगे बेदरेग बता दूंगा। बेहतर है। क्या करार साहब को कोई हादसा पेश आ सकता है? जी देखिए, बात दरअसल ये है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे कुछ छुपा सकूं, लेकिन इतना आप जानते होंगे कि बाज मामलात में बुरे आदमी भी ज़मीर रखते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ और तुम्हारी इस सिफ्त से भी वाकिफ हूँ कि तुम वादा खिलाफी नहीं करते। तुमने मुझसे एक बार वादा किया था कि अब अच्छे आदमियों की तरह जिंदगी बसर करोगे और तुम इस पर कायम हो। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम करार साहब को इनके एहसान के एवज किसी इल्जाम से बचाना चाहते हो। जी हाँ, पिंटू इत्मीनान का सांस लेकर बोला। बिल्कुल यही बात है। लेकिन पिंटू, तुम्हें यह सुनकर अफसोस होगा कि आज दोपहर को करार साहब कत्ल कर दिए गए। क्या? पिंटू उछलकर 2-3 कदम पीछे हट गया। हाँ, इनका कत्ल पुरस्कार हालात में हुआ है। मेरे खुदा! पिंटू मुजरिबाना अंदाज में अपनी पेशानी रगड़ने लगा। इसलिए ये पूछना जरूरी है, मुमकिन है तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम हो? इमरान ने कहा। क्या आप ये समझते हैं कि इस कत्ल में मेरा हाथ है? तुम फिर गलत समझे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम अपने वादे के मुताबिक अरसे से बाइज्जत तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हो। मेरा मतलब ये है कि करार साहब को इस हादसे का अंदेशा पहले से रहा होगा। क्यों, ऐसा था या नहीं? मेरा ख्याल है कि था। पिंटू कुछ सोचता हुआ बोला। इन्होंने मुझसे किसी गैर मुल्की का तस्करा किया था जो शायद सेठ दाऊद के मेहमान खाने में मुकीम है। वो तस्करा किस किस्म का था? इनका कहना था कि अगर वो किसी तरह काबू में आ जाए तो बहुत बड़ा माली फायदा हासिल हो सकता है। क्या करार ऐसा ही आदमी था? जी नहीं, इससे पहले मैंने इनकी जुबान से इस किस्म की गुफ्तगू कभी नहीं सुनी थी।
हालांकि मुझे इनके साथ रहते हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है। इन्होंने मुझे बताया था कि वो गैर मुल्की एक बहुत बड़ा मुजरिम भी है। नाम तो बताया होगा? जी नहीं, इन्होंने कहा था कि शायद इन्हें इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत पेश आए। इमरान सोच में पड़ गया। जब पिंटू जैसा खतरनाक आदमी करार के पास मौजूद था तो इसे फिगारो के मैनेजर से मदद तलब करने की क्या जरूरत थी। पिंटू इसके लिए आग के समंदर में भी छलांग लगा देता। और फिर पिंटू पढ़ा लिखा आदमी था, ये चीज करार के भी इल्म में रही होगी। लिहाजा ये सोचना ही फजूल है कि पिंटू टेलीफोन डायरेक्टरी में करार के बताए हुए नंबर ना तलाश कर पाता। मगर हो सकता है कि यहाँ फोन ही ना हो। क्या यहाँ फोन है? इमरान ने पिंटू से पूछा। जी हाँ, इमरान फिर सोचने लगा। यहाँ फोन भी मौजूद है, फिर आखिर इसने मदद के लिए फिगारो के मैनेजर ही को क्यों रिंग किया? इसका मतलब यही हो सकता है कि फिगारो का मैनेजर भी इस मामले में गहरी दिलचस्पी रखता है। ये और बात है कि बात बिगड़ जाने पर वो इससे बेताल्लुकी जाहिर करे। तुमसे करार साहब किस किस्म की मदद चाहते थे? इमरान ने पिंटू को फिर मुखातिब किया। क्या आप खुद ही नहीं सोच सकते कि वो मुझसे किस किस्म की मदद चाहते रहे होंगे? मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि वो किसी खतरनाक आदमी के चक्कर में थे। इन्होंने तुम्हें अपना प्लान भी बताया होगा? जी नहीं, मैं प्लान से वाकिफ नहीं था। अलबत्ता ये जरूर जानता हूँ कि एक आदमी ने इनकी तवज्जो इस अफ्रीकी ताजिर की तरफ मबजूल कराई थी। किसने? फिगारो के मैनेजर ने। ओह! इमरान ने एक तवील सांस ली और पिंटू की आंखों में देखने लगा। थोड़ी देर तक वो खामोश रहे। फिर पिंटू ने इमरान पर सवालात की बौछार कर दी और इमरान ने इसे सब कुछ बता दिया, अलावा इसके कि वो फिगारो के मैनेजर से पहले ही मिल चुका था। अच्छा पिंटू, इमरान बोला, ये बताओ मगर अच्छी तरह सोचकर, क्या करार ने तुमसे खास तौर पर इस बात का तस्करा किया था कि वो ये सब कुछ फिगारो के मैनेजर की ईमा पे कर रहा है? ठहरिए, वाकई इसके मुतालिक मुझे सोचना पड़ेगा कि ये बात कैसे निकली थी। मगर क्या आप फिगारो के मैनेजर पर भी किसी किस्म का शुबा कर रहे हैं? अब तुम मेरी बात का जवाब दो, लेकिन तुम्हें इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये क्यों पूछा है। मैं यकीनन जवाब दूंगा। मुझे ये कोई गहरी साजिश मालूम होती है। हाँ देखिए, मुझे याद आ गया कि करार साहब के मुंह से ये बात गालिबन गैर इरादी तौर पर निकल गई कि इस मामले में फिगारो के मैनेजर का भी हाथ है। लेकिन इसके बाद इन्होंने इसे इस तरह टालने की कोशिश की थी जैसे इस बात की कोई अहमियत ना हो। शुक्रिया पिंटू, इमरान सर हिलाकर बोला। अब तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि करार साहब बेदाग आदमी नहीं थे, इनका दामन भी जुर्म के धब्बों से पाक नहीं था। और ये बात शायद मुझे आज से 15 दिन पहले मालूम हुई थी। वो शराब के स्मगलर थे और फिगारो का मैनेजर भी इस जुर्म में बराबर का शरीक था। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई पिंटू? एक रात वो बहुत ज्यादा नशे में थे। इसी हालत में इन्होंने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया था। शायद इस रात फिगारो के मैनेजर से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। गालिबन आप समझ गए होंगे। बिल्कुल समझ गया पिंटू, एक बार फिर शुक्रिया। यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन है? 3 नौकर। करार के किसी रिश्तेदार से वाकिफ हो? मेरा ख्याल है कि इनका कोई रिश्तेदार नहीं। मैं वसूख से नहीं कह सकता, इन्होंने कभी तस्करा नहीं किया। मैं इसके मुतालिक नौकरों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ठहरिए, मैं इन्हें बुलाता हूँ। पिंटू चला गया। थोड़ी देर बाद 3 नौकरों के साथ वापस आया, लेकिन इनसे भी इमरान को करार के रिश्तेदारों के मुतालिक कुछ ना मालूम हो सका। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक इनसे सवालात करता रहा। फिर इसने पिंटू से कहा कि वो बंगले की तलाशी लेना चाहता है। जाहिर है पिंटू इस पर इतराज नहीं कर सकता था, क्योंकि खुद इसे अपनी गर्दन भी इस केस में फंसती हुई नजर आ रही थी। दिन डूबते ही इमरान फिर सर सुल्तान के बंगले में जा पहुंचा। सर सुल्तान चंद दूसरे बड़े अफीसरों के साथ लान में बैठे हुए थे। इनमें इमरान के वालिद मिस्टर रहमान भी थे। मिस्टर रहमान CBI के डायरेक्टर जनरल थे। सर सुल्तान इमरान को देखते ही इन लोगों से माजरत करके उठ गए। फिर वो इमरान को अपने साथ ड्राइंग रूम में लाए। क्यों, क्या खबर है? तुम्हारे बाप ने तुम्हें देखकर बहुत बुरा सा मुंह बनाया था, सर सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा। बाप हर हाल में बाप होता है, ख्वाह बेटे को इसका मुंह बनाना पसंद हो या ना पसंद हो। खबर यह है जनाब कि मरने वाले का नाम करार था और कयामगाह मार्स्टन रोड पर है, 13वां बंगला। मकतूल जी हैसियत आदमी था। तुम वाकई हीरो में तोले जाने के काबिल हो, सर सुल्तान ने कहा। CBI वाले अभी तक कुछ भी नहीं मालूम कर सके। वो शराब का स्मगलर था, मगर उल्लू ने इसकी जिंदगी स्मगल आउट कर दी। क्या मतलब? क्या आप मुझे जनूबी अफ्रीका के मुतालिक कुछ भी नहीं बताएंगे? इमरान ने बड़ी मासूमियत से पूछा। लेकिन सर सुल्तान इस तरह उछल पड़े जैसे बिच्छू ने डंग मारा हो। आखिर आप इससे डरते क्यों हैं? इमरान ने अंधेरे में तीर फेंका, लेकिन वो तीर ठीक निशाने पर बैठा, क्योंकि सर सुल्तान का चेहरा दफतन जर्द हो गया था।
तुम सचमुच हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो, वो मस्तबाराना अंदाज में बोले। मुझे तुम पर बहुत एतमाद है। अगर तुम मेरे बेटे होते, हाँ, तब मैं 100% नालायक होता। कोई गलत बात ना कह दीजिएगा, बेटा होना ही तो बहुत बुरी बात है। इमरान, बैठ जाओ, मैं सख्त उलझन में हूँ। मुझे यकीन है कि तुम ना सिर्फ मेरी मदद करोगे बल्कि राजदारी भी बरतोगे। मैं एक बहुत बड़े ब्लैकमेलर के चक्कर में पड़ गया हूँ। इमरान एक कुर्सी पर टिक गया। मैंने इसे आज तक नहीं देखा, सर सुल्तान ने कहा। तुम्हें इल्म है कि मैं पहले फ्रांस के सफारत खाने में था और पेरिस में मेरा कयाम तकरीबन 7 बरस तक रहा है। वहीं मुझे इस पुरस्कार आदमी से दो चार होना पड़ा। पता नहीं किस तरह इससे मेरा एक राज मालूम हो गया, ऐसा राज जिसके जाहिर हो जाने पर किसी तरफ का ना रहूंगा। बहरहाल पेरिस ही के दौरान कयाम में मुझे इस बात का इल्म हुआ कि कोई और भी इस राज से वाकिफ है। मुझे बजरिए डाक इसके मुतल्लिक एक खत मौसूल हुआ और इस खत के साथ उल्लू की तस्वीर भी थी, जिसकी पुष्ट पर रात का शहजादा तहरीर था। खत में इस राज पर तफसीली रोशनी डाली गई थी। फिर बाद में एक काम के लिए कहा गया था जो सफारतखानी ही से मुतल्लिक था और धमकी दी गई थी कि अगर वो काम ना हुआ तो मेरा राज तश्त अज़बाम हो जाएगा। खैर, बहरहाल वो काम ऐसा नहीं था जिससे मेरा या सफारतखाने का कोई नुकसान होता। वो काम कर दिया गया। फिर वो मुझसे इसके बाद भी अक्सर छोटे मोटे काम लेता रहा। हर बार मुझे इसकी तरफ से लिफाफा मौसूल हुआ करता था जिसमें उल्लू की तस्वीर जरूर हुआ करती थी। लेकिन अब वो शायद आजकल यही मुकीम है और मुझसे बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, ऐसा काम जिससे मुल्क और कौम का वकार खतरे में पड़ सकता है। पहले इसने मुझे खत लिखा, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब ना पाकर ये हरकत कर बैठा। वो मुझे खौफजदा करना चाहता है, यानी अगर मैं अपने राज की परवाह ना करूं तब भी वो दूसरे जराए से काम निकाल लेगा। इसका मतलब यही हो सकता है कि ये मुझे जान से मार देने की धमकी है, यानी जिस तरह वो मेरे पड़ोस में एक वारदात करके दिन दहाड़े लाश मेरे कंपाउंड में डाल गया, इसी तरह मुझे भी खत्म कर सकता है। क्यों, क्या ख्याल है? सर सुल्तान खामोश होकर इमरान की तरफ देखने लगे। जाहिर है, इमरान बोला, आप मुझे अपना वो राज नहीं बताएंगे? हरगिज नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो यही बता दीजिए कि वो अब आपसे क्या काम लेना चाहता है। मैं ये भी नहीं बता सकता, तुम इसे पूछकर क्या करोगे? लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है? बस मालूम हो गया। क्या ये गलत है? नहीं, मैंने पेरिस ही में इसके लिए अफवाह सुनी थी। अफवाह? हाँ, बात दरअसल ये है कि इस जमाने में पेरिस के कई बड़े खानदानों पर इसी उल्लू का मनहूस साया था और लोग इसे वहां उल्लू ही के नाम से याद करते थे। लेकिन मुझे एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने इसे कभी देखा हो। इसके मुताल्लिक आपकी जाती राय क्या है? जाहिर है, मैं एक ब्लैकमेलर के मुताल्लिक कैसी राय रखूंगा? मेरा मतलब आप नहीं समझे। मैं पूछता हूँ कि आपकी दानस्त में इसमें कुछ दम भी होगा या भुस ही भुस भरा होगा? कहीं खोदा पहाड़ और निकला चूहा के मजदाक ना हो। मगर इससे क्या, वो यकीनन एक मुजरिम है और इतना ही काफी है। तुमने इस वक्त जो तस्वीर देखी थी वो मुझे इसी लाश पर रखी हुई मिली थी, सर सुल्तान ने कहा। मैं समझ गया था, इमरान ने कहा, क्योंकि इसकी पुष्ट पर एक छोटा सा खून का धब्बा था। क्या आप ये तस्वीर मुझे दे सकते हैं? तस्वीर? हाँ, ले जाओ, मगर इमरान, इसे तलाश कर लेना बड़ा मुश्किल काम होगा। इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सीबीआई का कोई आला तरबियती याफ्ता जासूस नहीं हूँ। लेकिन सुनो, किसी को ये बात मालूम ना होने पाए कि वो तस्वीर लाश पर मिली थी या इस ब्लैकमेलर का कुछ ताल्लुक मेरी जात से भी है। आप मुतमईन रहिए, एक बार फिर अर्ज करूंगा कि मेरा ताल्लुक सीबीआई से नहीं है। हाँ, आपने मकतूल की तस्वीरें मंगवा ली या नहीं? वो कल सुबह तक तुम्हें मिल जाएंगी। अच्छा, तो अब इजाजत दीजिए, इमरान ने कहा और सर सुल्तान के जवाब का इंतजार किए बगैर बाहर निकल गया। उल्लू की तस्वीर इसे मिल गई थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कहानी और नावलों से लुत्फ अंदोज होते रहिएगा।